اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ ویڈیو کے موضوع پر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنے ایمان کو پیش کر دوں، تاکہ ویڈیو کے کنٹینٹ میں ایسی باتیں ہوں گی شاید آپ کے ذہن میں کوئی شکوک نہ پیدا ہو جائیں۔ دیکھیے، میں خدا تعالیٰ کی توحید کا قائل ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا قائل ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور یہ بھی مانتا ہوں کہ قرآن حکیم ہماری کتاب ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے مقرر ہے۔ ہمیں قیامت تک اس سے رہنمائی ملتی رہے گی۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے، جو لوگ کچھ آیات مبارکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا ان کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیات کریمہ ہمارے لیے نہیں ہیں، وہ صرف اس دور کے لیے تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب کہ ہم نے قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ ماننا ہے اور قیامت تک کی ہدایت لینی ہے۔ مثال کے طور پر حضور قرآن شریف میں ارشاد ہے، یا ایھا المزمل، اے کملی لپیٹنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے۔ کیا اس کا اطلاق ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ آیات مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی گئی تھی، یعنی ان کا مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تھی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کو اس طرح سے بیان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ہمارے لیے بھی ہوتی، یا یہ ہمارے لیے بھی ہیں؟ اس بات کی وضاحت کرنا پڑے گی۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ آیات مبارکہ تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھیں، تو پھر ان کو قرآن مجید میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح سے آئیے میں کچھ اور آیات کا حوالہ بھی آپ کے سامنے دیتا ہوں، پھر ان کا ترجمہ جو ہے وہ کس طرح سے کریں گے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس کا ترجمہ، اسی طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا جو تم پر ہماری نشانیوں کو بیان کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے، اور ایسی چیزیں تم کو سکھاتا ہے جو تمہاری طاقت سے باہر تھی، جو تمہیں نہیں جان سکتے تھے۔ اب دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے، عالم برزخ میں تشریف لے گئے۔ اب اس آیت کا مصداق کون ہے؟ اگر یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم میں ایک رسول بھیجا ہے، جس کے یہ فرائض گنا دیے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ سب کام کرتا ہے۔ کیا یہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں بیان کیے ہیں وہ اب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اگر ہو رہے ہیں تو وہ کون کر رہا ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ صاف واضح فرما رہا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا، میں نے اسی طرح تم میں رسول بھیجا، منکم تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، یزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، یعلم الکتاب، تمہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم جان نہیں سکتے تھے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، چلے گئے، ان کا تعلق اس جہان سے نہیں رہا، تو یہ فعل کون انجام دے گا؟ اگر یہ کوئی فعل انجام دے رہا ہے اور قیامت تک اس فعل کو انجام دیا جاتا رہے گا تو پھر کون دے گا؟
कौन ये फेल अंजाम करेगा, इसको भी समझना पड़ेगा। और आखिर में मैं इस पर भी बात करूंगा। और एक दूसरी आयत मुबारक देखते हैं। ये दूसरी आयत मुबारक सूरत निसा की है और आयत नंबर है 64। वलाओ अन्नहुम इस जालमु अनफुसहुम, और अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, वो जाऊ का और आए आपके पास, वस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, वस्तगफिर रसूल और रसूल उनके लिए बख्शिश मांगे, लवजदुल्लाह तवाब रहीमा, तो अल्लाह ताला को बहुत रहीम पाएंगे, तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। अब बताइए, इसका तर्जुमा कीजिए। क्या आज हम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं? हम तो ये कहते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए और चले गए, अब उनका जहान से कोई तल्लक नहीं रहा, वो आलम बरज़ख में हैं, इस जहान से कोई तल्लक नहीं है। जो आलम बरज़ख में जाता है उसका इस जहान से कोई तल्लक नहीं रहता। तो फिर ये कौन करेगा? हम वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म करेंगे, हमसे गुनाह सरद होंगे, तो उन्हें बख्शवाने के लिए किसके पास जाएंगे? अगर आप ये कहें कि हम रोज़ा रसूल पर जाएंगे, लेकिन इस आयत मुबारक में रोज़ा रसूल को नहीं बयान किया गया, यहाँ पर जाऊ का कहा गया, हुजूर अकरम की जात मुबारक जो है उसका जिक्र किया गया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये मैं बहुत सी आयत मुबारक में से ये दो आयत मुबारक जो आपके सामने रखी हैं, जिनमें हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को, उनके फ़राइज़ को बयान किया गया है। क्या हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फ़राइज़ वक्ती हैं या उस दौर के लिए थे जब वो इस दुनिया में मौजूद थे और ये काम ता क़यामत तक नहीं था? अगर ये ता क़यामत नहीं था तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नाम लेकर, उनसे निस्बत देकर ये बात क्यों बयान की है कि वो ये काम करते हैं? फ़िल मुज़ारे में, फ़िल हाल में, माजी का सीगा इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका क्या मतलब है? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, कुरान हमारे लिए हदायत का सर चश्मा है, हमें इसी से हिदायत मिलेगी। इसको छोड़कर हमारे लिए कोई और ऐसा जरिया नहीं है जो हमें हिदायत दे सके। हुदल लिल मुत्तकीन, इसी की सिफत है, इसी ने हमें हिदायत देनी है और इसी से हमने रास्ते पर चलते हुए अपने हिदायत के सिलसिले में अल्लाह ताला से जाकर तअल्लुक़ कायम करना है, उसके सिरात मुस्तकीम पर चलना है, इसी कुरान के ज़रिए से। तो फिर इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ताला राज़िक़ है, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए आसमानों से रिज़्क़ उतारता हूँ, मैं हर किसी को उसका रिज़्क़ पहुँचाता हूँ। उलमा किराम बयान करते हैं कि अगर पत्थर में कीड़ा हो तो उसको भी राज़िक़ उसका रिज़्क़ देता है। तो फिर हम रिज़्क़ के पीछे क्यों मारे मारे फिरते हैं? दफ्तरों जाते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरियां करते हैं, लोगों की भली बुरी बातें सुनते हैं और फिर हमें जाकर कहीं रोटी नसीब होती है। क्या खुदा ताला का वादा सच्चा नहीं है? क्या वो राज़िक़ नहीं है? वो राज़िक़ है, उसका वादा भी सच्चा है, लेकिन एक नज़म है, एक निज़ाम है जिसके तहत हर काम होता है। इसी तरह जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ जो बयान किए गए हैं, उसका भी एक नज़म है, एक तरीका है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नेक बंदे, वो नेक लोग जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते हैं और अल्लाह ताला की उन पर रहमतें हैं, शफ़क़तें हैं, और जिन्हें औलिया किराम, उलमा इकराम कहा जाता है, ये उनका काम है। जब वो करेंगे तो किसका काम गिना जाएगा? रसूल का काम गिना जाएगा। यहाँ एक बात और भी याद रखने की है, वो ये बात, यहाँ नबी का जिक्र नहीं किया गया, रसूल का जिक्र किया गया है। नबुव्वत तो हमेशा के लिए बंद हो चुकी, लेकिन रिसालत बंद नहीं हुई है। दूसरी बात,
नबी आसमानी लफ्ज है और रसूल दुनिया का लफ्ज है। आम पैगाम पहुंचाने वाला, बात पहुंचाने वाला, इतला पहुंचाने वाला, उसको रसूल कहते हैं। और जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत जताने वाले, जिनके पहलू रातों को उनके बिस्तरों से अलग होते हैं, खुदा के सामने खड़े होते हैं और उसकी हम्दो सना बयान करते हैं, ये वही लोग हैं जो नुमाइंदा रसूल हैं। अब अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमें कैसे हिदायत मिलेगी? जो काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में फरमाते रहे, वही काम इन लोगों ने करना है और हमारी तालीम, हमें तालीम देनी है और हमारे लिए सिरात मुस्तकीम को आसान बनाना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, शायद मेरे कुछ लफ्ज़ तलख हो गए हों, उनके लिए मैं माज़रत खा हूँ। लेकिन जब अल्लाह ताला का हर काम एक नज़म के साथ होता है, असूल के साथ होता है, तो इन बातों के लिए भी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, एक नज़म होगा, एक असूल होगा, एक सिलसिला होगा। उस सिलसिले का इनकार करते हुए हमें कुछ हासिल नहीं होगा, हमें उस सिलसिले को मानना पड़ेगा। इसी लिहाज से, इसी तरह से ये कुरान हमारे लिए ताक़यामत रहनुमाई का जरिया बनेगा। और मुकम्मल कुरान अगर हम इस तरीके को छोड़ देते हैं तो हमें तकरीबन मेरे ख्याल में तीसरा चौथा ऐसा कुरान शरीफ का है वो छोड़ना पड़ेगा जो हमारे काम का नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, औलिया किराम, बुजुर्गान दीन हमारा असासा है, हमारी रहनुमाई का जरिया है। उनको छोड़कर हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम राहदार नहीं पा सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम आप आखिरी ज़िंदगी कामयाब हों तो इन लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी, उनसे इल्म हासिल करना पड़ेगा, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यही वो लोग सच्चे हैं जिनसे हमने जुड़ना है, वही हमें कामयाब कराएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।